Okay, so I think in last session I have just introduced this line integral. Okay, uh, so can anyone tell me what is the definition of line integral? If I have a vector, f bar is equal to f1 into I bar, f2 into j bar, and f3 into k bar, then what is my line integral? Line integral of this f bar, or simply what is integration of this f bar? Yes, what is the formula? It is equal to, bolo, it is equal to integral of f bar dot with dr bar. Okay, where what is dr bar? हाँ बोलो, what is dr bar? What is dr bar? dx I bar. हाँ, dx I bar plus dy j bar dz k bar or k cap. So as f bar is this, dr bar is this. Now can you tell me what is f bar dot dr bar over some curve C? That is called as line integral. So can you tell me that simplified form, or what is dot product of this f bar and dr bar? Yes, f1 dx हाँ, f1 dx, f2 plus f2 dy plus f3 dz. ओके, हाँ. तो फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट क्या लर्न किया था? नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस सिंगल इंटीग्रल? कैन यू सॉल्व दिस सिंगल इंटीग्रल डायरेक्टली? ये डायरेक्ट सॉल्व होगा क्या? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस सिंगल इंटीग्रल? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस इंटीग्रल? three variable. Yes, there are three variables, and as there is a single integral, so you can integrate with respect to only one variable. Okay, it means you have to convert this three variable into one variable. यही आपको बेसिकली लाइन इंटीग्रल में करना है. आपको इन वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, एंड फॉर दैट वी हैव डिफरेंट रिमार्क्स. ओके, सो लेट मी टेल यू दैट रिमार्क्स. So this is the definition of line integral. Okay, if C is closed curve, then this is denoted by this notation. So this is just a notation. अगर आप इंटीग्रल में एक सर्कल ड्रॉ करते हो ना, then in that case that C, the curve C is a closed curve. Okay, हाँ. Next part is what? If in the question we have given f bar as a force field. अगर आपको क्वेश्चन में ही गिवन होता है कि f बार आपकी फोर्स फील्ड है, इन दैट केस दिस लाइन इंटीग्रल इज नथिंग बट वर्क डन. ये सारे रिजल्ट याद रखो. सो लाइन इंटीग्रल एंड वर्क डन सेम ही टॉपिक है. अगर क्वेश्चन में आता है कि फाइंड वर्क डन, इन दैट केस दे हैव टू मेंशन दैट दिस f बार इज अ वेक्टर फील्ड. इफ इट इज नॉट मेंशन, then you have to assume and you have to use the same definition of line integral. So both are equal. Line integral and work done are equal. Definition same ही है, but work done के केस में they have to mention that this f bar is a force field. Okay, तो ये भी हुआ था. Now as we know that at that we have to convert that three variable into one variable. This is our aim. This is our claim. क्योंकि आप because after this only we can solve that single integral. So there are some remarks. Okay, how you convert these three variables into one variable. So the first remark is what? If equation of curve is known, अगर आपके पास कर्व का इक्वेशन गिवन है, then use that equation as it is. Then use that equation to convert this three variable into one variable. Equation of curve is known, then use as it is a substitution. Okay, इसका मतलब क्या है कि वही यूज करके आपको थ्री वेरिएबल को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. ओके, नेक्स्ट क्या है? इफ इक्वेशन ऑफ पाथ इज अननोन बट 2 पॉइंट ऑन अ कर्व आर गिवन. ओके, आई थिंक इंस्टेड ऑफ दैट, आई थिंक मैंने कुछ यहाँ पे अपने जस्ट चेक, मैंने कहीं पे तो एक्सप्लेन किया था प्रॉपर. सो लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम दैट ओनली. हाँ, तो क्योंकि कुछ स्टेटमेंट आपको वहाँ से नहीं समझ में आएंगे. तो ये था लाइन इंटीग्रल का पार्ट. हाँ,
तो केस वन आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन, देन यूज दैट इक्वेशन टू कन्वर्ट इनटू वन वेरिएबल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया था, ये आपका एफ बार डी आर बार है, आपके पास कर्व का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो आप y पुट करके इस पूरे the whole equation, the whole f bar dot dr bar is now get converted into x. Okay, so now you are in one variable. This is your first case. Okay, now second case क्या थी, if your curve is a straight line joining the 2 points a and b. Okay, आपको कर्व का इक्वेशन गिवन नहीं है, ओके आपके पास बस ये इंफॉर्मेशन है, दैट कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन विच जॉइन द पॉइंट्स a and b. In that case you have to use the 2-point formula. Okay, we call it as 2-point फॉर्मूला, करेक्ट ना, यही था ना टाइटल, मुझे परफेक्ट याद नहीं है. यस, व्हाट दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड, व्हाट दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड, आर यू देयर और नॉट? यस सर. ओके, आप चेक करो, अगर रॉन्ग है तो आप चेक करो, बट आई थिंक इट इज कॉल्ड एज 2-point फॉर्मूला. ओके, ठीक है. So just use this equation. So what is the equation of straight line passing through these 2 points? Is x minus x1 by x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1. Now to convert those 3 variables into one variable, you have to consider this ratio equal to t. Then you can find x, y, z in terms of t. Then calculate dx, dy, dz in terms of t. Okay, and after that you can see that f bar dot dr bar is get converted into one variable. Okay, and that variable is t. We'll take some example on this part also. तो ओके, एक एग्जांपल मैंने करके भी दिखाया, तो आप देखो x y z की वैल्यू t में जा रही है और dx dy dz की वैल्यू t में जा रही है. नाउ थर्ड केस क्या है, हाँ, सो थर्ड केस इज व्हाट, हाँ, सो लेट मी कंटिन्यू फ्रॉम दिस. अननोन कर्व joining the 2 points a and b. So here we don't know what is the nature of that curve. It means that curve may be like this, or that curve may be like this, straight line, or any other possibilities, etc. ठीक है. So we have only this information that there is one curve between these 2 points, but we don't know what is the exact nature of that curve. Okay, so in this case how you solve this problem, okay, in this case how you solve this problem वो मैं बाद में कवर करके देता हूँ. तो अभी तक okay, so let me first complete this first 2 cases. ठीक है, इसमें एक और रिजल्ट आने वाला है, तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. सो लेट मी, बस इतना याद रखो, ये भी एक पॉइंट आने वाला है. सो नाउ लेट मी टेक the first question on this. Okay, so evaluate f bar dot dr bar, where f bar is this, over a straight line y equal to 2x joining the points 0 0 and 1 2. Okay, so let me explain separately first. क्योंकि ऐसे जल्दी जल्दी समझ में आएगा. ओके, सो इन सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट क्या करना है, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. आपके पास एफ बार गिवन है, ओके, एंड आपके पास यहाँ पे कर्व का इक्वेशन भी गिवन है. तो कौन से केस का प्रॉब्लम है ये, केस 1 या केस 2? कौन से केस का प्रॉब्लम है, केस 1 या केस 2? बोलो. केस 2. केस 1 में शायद मैंने दिया था ये. ओके, लेट मी शो यू अगेन. केस 1 में इक्वेशन गिवन होता है, एंड केस 2 में आपके पास बस 2 पॉइंट्स आते हैं और उन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है. इतनी इंफॉर्मेशन है. ठीक है, सो रिमेंबर दिस 2 केसेस. सो लेट मी जस्ट राइट हियर केस 1, तो आपको यू कैन लिंक विद दैट केस इजीली. या, सो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस लाइन इंटीग्रल. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइन इंटीग्रल? इट इज ऑलरेडी गिवन इन द एग्जांपल. इट इज एफ बार डॉट डी आर बार. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस? एफ बार की डायमेंशन क्या है यहाँ पे, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन? 2 डायमेंशन. 2 डायमेंशन. सो कैन यू टेल मी द सिंप्लीफिकेशन एफ बार डॉट डी आर बार? क्या होगा सिंप्लीफिकेशन? एक्स वाई डी एक्स. हाँ, दैट इज f1 dx प्लस f2 dy, एंड f1 आपको पता ही है, दैट इज xy
dx ओवर अ कर्व सी और उन्होंने ये मेंशन भी किया है कि दैट कर्व इज क्लोज कर्व. सो एक्स वाई डी एक्स प्लस सॉरी f2 इज वॉट, f2 इज वाई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर डी वाई. ठीक है, डन. But you cannot solve this integral as this integral is a two variable, so you have to convert this two variable into one variable. But for that we have directly given the equation of curve. So what we have y is equal to 2x. So just put y equal to 2x. That implies dy is equal to 2 times dx. Then this integral become, so integral xy, but y is 2x, so it is 2x square dx plus y square is 4x square, dy is 2 dx. Okay, so now if your whole integral in x, then in the integration you have to consider limits of x. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सो योर होल इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू x, तो इसलिए अभी लिमिट में भी आपके पास क्या आने वाले हैं, x के वैल्यूज आने वाले. सो व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ x, तो उसके लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया. सो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ x? 0 to 1. वेरी गुड. तो योर लिमिट्स वैरी फ्रॉम 0 to 1. डन. सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1. ओके, देन 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी क्या होगा ये डायरेक्टली बोल सकते हो आप, 2x स्क्वायर एंड देन हाँ 8x स्क्वायर ना, 8x स्क्वायर, सो इट इज 10x स्क्वायर dx. ओके, सो दैट इज नथिंग बट 10 into x cube by 3 where limits from 0 to 1 and that is nothing but 10 by 3. करेक्ट है क्या? यस सर. ओके, डन. ठीक है, ये जो पार्ट होता है ना इंटीग्रेशन का, यहाँ पे आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो. तो जो डिफिकल्ट है उस टाइम पे मैं आपको बोलता हूँ. ओके, फॉर दिस दोज हु फाइंड डिफिकल्ट, ओके, दे कैन यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर हियर. ओके, या सो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. सो दिस इज डन. नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2. तो मुझे बोलो कौन से केस के ऊपर ये क्वेश्चन है, केस 1 या केस 2? लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. हाँ, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, बट आपके पास कर्व का इक्वेशन नहीं है. आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, दैट कर्व C is actually a straight line, joining 0 0 0 2 1 2 3. इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास. ठीक है, सो इट्स अ लाइन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स. सो कैन यू टेल मी इक्वेशन ऑफ दिस कर्व? हाँ, x minus x1 upon x2 minus x1. So x minus x1 is 0 upon x2 minus x1 is 1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1. Now to convert it into one variable, let us put equal to t, है ना. So what is my x here? X is equal to t, y is equal to 2t and z is equal to 3t. Now let me write the line integral. So line integral is equal to integral of f bar dot dr bar over curve C. Okay, कितने डायमेंशन का f bar है? 3 डायमेंशन का है. ठीक है, so that is nothing but f1 dx f2 dy plus f3 dz over curve C. So it is equal to, बोलो, x square, so x square dx minus xyz dy, next xz. Okay, so plus xz dz. Okay, हाँ, so now if I consider x equal to this, y equal to this, z equal to this, so can you tell me what is dx? क्या आएगा? dt, dy is 2 dt and dz is 3 dt. Now just put all these values here. So x square means t square
dx इज dt dt माइनस तीनों का प्रोडक्ट x y z का प्रोडक्ट क्या आएगा 3 इंटू 2 6 6t क्यूब dy इज ऑलरेडी 2 dt x and z का प्रोडक्ट इज 3t स्क्वायर एंड dz इज 3 dt. ठीक है. सो नाउ द होल इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू t. तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स में क्या आने वाले हैं? t के लिमिट्स आने वाले. सो कैन यू टेल मी लिमिट्स ऑफ t? कैन यू टेल मी लिमिट्स ऑफ t फ्रॉम दिस? समझ में आ रहा है ना? इंटीग्रल t में कन्वर्ट हो रहा है तो t के लिमिट्स चाहिए. तो t के लिमिट्स क्या रहेंगे? हाँ 0 to 3 नहीं. चलो कैसे कैलकुलेट करना वो एक्सप्लेन करता हूँ. आपके 0 पास to 1. आप करेक्ट 0 to 1 इज करेक्ट. आपके पास x के लिमिट है क्या? आपके पास x के लिमिट है क्या? अरे Yes, sir. हाँ. सो व्हाट आर दोज लिमिट्स? 0 to 1. 0 to 1. y के लिमिट्स क्या है? 0 to 0 2 to 2. एंड z के सो तीनों में से कोई भी एक पार्ट यूज करो. इट इज नॉट कंपल्सरी कि x यूज करना है, y यूज करना है, z. कोई भी एक पार्ट यूज करो, आप t के कैलकुलेट कर सकते हो. चेक करते हैं. सो व्हेन आई पुट x इक्वल टू 0 व्हाट इज t? यहां पे देखो, चेक दिस इक्वेशन. व्हेन आई पुट x इक्वल टू 0 व्हाट इज t? 0. 0 व्हेन आई पुट x इक्वल टू 1 t इज 1. चेक सेकंड में चेक करते हैं. व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू 0, सॉरी व्हेन आई पुट y इक्वल टू 0 t इज 0. व्हेन आई पुट y इक्वल टू 2 t इज 1. थर्ड में भी आप चेक करो, यू विल गेट द सेम लिमिट्स. इसलिए तीनों में से कोई भी एक पार्ट यूज कर सकते हो. नाउ योर लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1. दिस इज इंपॉर्टेंट. इस पे MCQ रहेगा 110%. ठीक है. सो नाउ सो कंबाइनली यू कैन राइट इट हियर. t वैरी फ्रॉम 0 to 1. क्या आ रहा है ये t स्क्वायर प्लस 9t स्क्वायर बिकम 10t स्क्वायर माइनस 12 t क्यूब देन dt. करेक्ट है. अब ऐसे इंटीग्रेशन ओके आपको मैन्युअली ही करने हैं, बट दोज जिनको पता है कि इसके आगे मुझे ज़्यादा टाइम जाएगा, मुझे डिफिकल्ट जाएगा, यू कैन डायरेक्टली पुट ऑन कैलकुलेटर. ठीक है. तो वो मैं आपको बस दिखाता हूँ. आई थिंक आपको पता ही होगा ये. सो नाउ लेट मी पुट दिस इंटीग्रल एज इट इज. ओके इंटीग्रल का ऑप्शन है यहाँ पे. अभी इसके एलसी में कहाँ पे है? हाँ यहाँ पे. ठीक है. सो नाउ दिस लेट मी चेंज द मोड फर्स्ट. या सो यू कैन सी द इंटीग्रल इन ब्रैकेट 10. ओके लेट मी टेक अल्फा x करेक्ट माइनस 12 सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर है. यहाँ पे स्क्वायर है एंड 12x का क्या है? क्यूब है. देन ब्रैकेट कंप्लीट. क्लियर? समझ में आ रहा है? एज इट इज पुट करना है, यह पता होना चाहिए आपको अभी. ओके देन जस्ट पुट द लिमिट्स. सो व्हाट आर योर लिमिट्स? 0 to 1. नाउ प्रेस इक्वल. क्या वैल्यू आ रही है? Are you able to see? What is the answer? 1/3. 1/3. 1/3. ठीक है. तो जिनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है ना कैलकुलेटर में, यूज दिस पार्ट, बट एट द एंड यू हैव टू कम विद द करेक्ट आंसर. सो इट इज़ अप टू यू. इफ़ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन यूज. क्योंकि ये वैसे भी ऐसे करना इतना डिफिकल्ट नहीं था. यहाँ पर पता है 10/3 माइनस 12/4 आने वाला है. तो जिनको पता है दे कैन डायरेक्टली सॉल्व. सो इट डिपेंड ऑन यू. डन. ये जो लेक्चर के नोट्स हैं ये आपसे मैं शेयर करता हूँ. हाँ ये एक्चुअल PPT है. सो आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर. इट इज करेक्ट 1/3. सो डन. नेक्स्ट. सो इवैल्यूएट द लाइन इंटीग्रल. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये केस मैंने आपको सेपरेटली नहीं दिया, बट यू कैन रिलेट विद दिस केस ओनली. ओके. सो नेक्स्ट इन सॉल्यूशन.
evaluate the line integral f bar equal to this over a path joining 0 0 0 1 and then 0 1 0 and okay. तो बेसिकली क्या उनका कहना है, योर कर्व C is a path from A to B where A has coordinates 0 0 0, B has coordinate 0 0 1. ये पहला पाथ है, ठीक है, फर्स्ट पाथ. देन फ्रॉम दिस पाथ to another path where C has coordinate 0 1. अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ओके, नहीं पाथ ही है, तो इट्स एक्चुअली स्ट्रेट लाइन, करेक्ट, इट्स अ स्ट्रेट लाइन. अभी आप बोलोगे सर ऐसे क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पता आप प्रॉपर पॉइंट्स को भी आप कनेक्ट करके जा सकते हो. ओके, मैं बस लिख रहा हूँ ऐसे, सेकंड पाथ एंड देन थर्ड पाथ, यहाँ से डी पॉइंट पे, डी पॉइंट क्या है, हाँ 1 1 1. ओके, तो आप प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ करो, बट ऐसा एक पाथ है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक, सी पॉइंट से डी पॉइंट तक, एंड आपको इस पाथ पे लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. सो व्हाट इज माय लाइन इंटीग्रल, पहले फॉर्मूला बोलो. द फॉर्मूला इज एफ बार डॉट डी आर बार ओवर अ कर्व सी, बट दिस कर्व सी हियर डिवाइडेड इन 3 पाथ, करेक्ट ना, करेक्ट और नॉट. This line integral curve or this curve C is divided in 3 paths, so this can be written as over a path AB plus over a path BC and over a path CD. Can I write like this? Can I write like this? Yes, sir. So now let me do the simplification. So it is equal to पहला over a path AB. Let me focus on that. What is f bar dot dr bar? Can you tell me directly? या तो 1 by 1 ही कर लेते, चलो. So over path AB. Let me solve this. Okay. So हाँ, उससे पहले मैंने इन जनरल लिख के रखता हूँ ये क्या, एफ बार डॉट डी आर बार का वैल्यू, एफ बार डॉट डी आर बार की वैल्यू. सो इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार होगा क्या, ये इट इज इक्वल टू, बोलो, एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई जेड डी वाई प्लस एक्स जेड डी जेड. डन. अभी आपको बस ओवर पाथ कैलकुलेट करना है. सो व्हेन यू गो फ्रॉम पाथ ए टू पाथ बी, when you go from path A to path B, can you tell me what is the what about x? X क्या है वहां पे? Is it constant or is it variable? When you go from Constant. हाँ, x क्या है, constant है, क्योंकि 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो x क्या है, constant है, और बेसिकली x की वैल्यू ही 0 है. ऐसे भी याद रख सकते हो. हाँ, नेक्स्ट व्हेन व्हाट अबाउट y? y भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, सो इट इज आल्सो कांस्टेंट. बट z आपका वेरिएबल है, z वैरी फ्रॉम 0 to 1. आर यू एबल टू सी दिस? समझ में आ रहा है? व्हेन यू गो फ्रॉम पाथ A to path B, ओनली z इज द वेरिएबल, अदर टू आर कांस्टेंट. सो इफ x इज कांस्टेंट, व्हाट इज dx? 0. व्हाट अबाउट dy? 0. 0. ठीक है, z के बारे में आपको नहीं पता, तो जस्ट यूज दिस 2 रिजल्ट. सो देयरफॉर इंटीग्रल ओवर पाथ ए बी एफ बार डॉट डी आर बार इज इक्वल टू, सो एज माई डी एक्स इज 0, सो दिस वैल्यू टेंस टू 0, दिस वैल्यू टेंस टू 0. आई कैन राइट ओनली हियर XZ DZ. बट x भी 0 ही है ना, क्या 0 ही आ रहा है क्या? 0 कैसे आएगा? x इज अ कांस्टेंट, आई कैन से, आई डोंट नो दैट वैल्यू. ओके, x की वैल्यू तो यू पुट नहीं कर सकते हो, बट उस केस में व्हेन आई इंटीग्रेट z स्क्वायर बाय 2, नहीं ना, आई थिंक वी हैव टू टेक इट 0. लेट मी जस्ट चेक. हाँ, तो क्योंकि वो वैल्यू फिक्स है ना, ठीक है. हाँ, so dx is 0, dy is 0. So here you can write only x y dz. Okay, but x की वैल्यू क्या है?
x कांस्टेंट है और x की वैल्यू उस पूरे पाथ पे x की वैल्यू 0 है, जहाँ पे भी x आता है उस पाथ पे आपकी वैल्यू क्या है 0. सो व्हाट अबाउट दिस देन? हाँ, 0 ही आएगा वो, क्योंकि उस पाथ पे कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करो x आपका 0 है, तो अगर होल पाथ पे x 0 है तो एट द एंड x की वैल्यू ही 0 है, सो दैट गिव्स यू 0. ठीक है, सेकंड का कर लेते हैं. 0 आ रहा था इसलिए एक डाउट आया था मुझे. ठीक है, ओवर पाथ क्या है वो नेक्स्ट BC. ओके, नाउ चेक पाथ BC. x क्या है? कांस्टेंट है, आपको दिखाई दे रहा है ना. x क्या है? कांस्टेंट. y क्या है? y वेरिएबल 0 to 1 और z कांस्टेंट है 1. सो x इज कांस्टेंट, y इज वेरिएबल and z is constant and z की वैल्यू 1 है. that is the difference. as these two are constant, dx is 0 and dz is 0. So let me again write over a path BC. बोलो, dy का ही रहेगा, so yz dz. But what about z? z क्या है? 1 ना, so it is just y dz. And what are the limits of y? Y vary from 0 to 1. So answer is 1/2. Clear? सेकंड केस क्लियर हो गई. सर पहले इंटीग्रेट करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू z. हाँ, इंटीग्रेट करो या y को बाहर लेके करो, कुछ भी करो. सॉरी, हाँ सॉरी, ये y है, y. अब देखो ना, dx 0 dz 0 है, dx 0 है dz 0, तो क्या रहेगा? yz dz. वही मैंने लिखा है, yz dy. फिर से वही मिस्टेक कर रहा हूँ, yz dy. सो yz dy है ना. बट उसमें आपको क्या पता है, z कांस्टेंट है और z की वैल्यू 1 है, तो आप इसमें z 1 रखो, यू विल गेट y dy. और y के लिमिट्स क्या है? 0 to 1. इज दिस क्लियर नाउ? यस सर. ओके, एंड नाउ अबाउट थर्ड पाथ, ओवर पाथ CD. अभी आप बोलो, टेल मी द लिमिट्स. बोलो जल्दी. CD yz constant, x variable. x variable. Okay, so x vary from 0 to 1 and y is equal to 1 which is constant, z equal to 1 which is constant. So dy 0 and dz 0. So my integral become, so over a path CD, f bar dot dr bar is equal to dy dz 0 है, तो मुझे बस dx का ही कोएफिशिएंट लिखना है which is xy dx. So xy dx, बट उसमें आई थिंक y की वैल्यू 1 है, so it is just x dx and your x vary from 0 to 1. यहाँ पे भी आप लिख सकते हो x vary from 0 to 1 and that is nothing but 1/2 again. Okay, so finally the whole integral over a path C, f bar dot dr bar is equal to, first value थी 0, second value थी 1/2, third value थी 1/2. so your answer is 1. क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस सर. ओके, ये मैंने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है, ये भी आपसे मैं शेयर करता हूँ. एंड इफ यू वांट टू रेफर यू कैन रेफर दिस आल्सो. तो लैंग्वेज में भी डिफरेंट बट अप्रोच वही है. Sir, हाँ बोलो ना. what if we calculate from direct A to B, A to D, sir? A to D. क्लोज कर नहीं बोला ना उन्होंने, तो आपको एंड नहीं करना है ना ए पे. ऐसा बोला है क्या कहीं पे? इज दिस पाथ क्लोज? नहीं ना. अभी यहाँ पे नोटेशन आ रहा है, सो डोंट कंफ्यूज विद दिस. हाँ, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है. ओके, दिस पाथ इज नॉट क्लोज ना. इफ इट इज क्लोज देन ओनली यू कैन ज्वाइन दिस 0 0 0 एंड 1 1 1 मीन्स ए. यहाँ पे पॉइंट्स अलग है मेरे, ए एंड डी. करेक्ट ना? हाँ. तो अगर ये क्लोज होता ना तो ही फिर आप डी से फिर से ए को ज्वाइन करते, बट वो क्लोज पाथ नहीं है. सो तो ये जो सॉल्यूशन है ये आप फॉलो करो. इसमें कहीं भी मैंने क्लोज नहीं दिया. दिस इज नॉट माय पीपीटी. ओके, तो इसलिए लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी, बट
सोल्यूशन है प्रॉपर, तो यू कैन रेफर डन. सो या अभी नेक्स्ट दिया है. हाँ अभी इसके लिए देखते हैं. यू नीड्स लिटिल नॉलेज फ्रॉम डबल इंटीग्रल. ओके अभी मैं देखता हूँ कितना ओके आपको समझ में आता है, बट यू नीड दैट पार्ट. यस. सो सॉल्यूशन, ये एक टॉपिक डिफिकल्ट नहीं लेंदी है, बट इसके आगे आई डोंट थिंक सो कि इतनी कुछ डिफिकल्टी आपको आएगी. थ्योरम है और डायरेक्टली आपको सॉल्व करते जाना है. यस. फाइंड अ वर्क डन बाय अ फोर्स ओके अराउंड अ सर्कल. सो व्हाट इज वर्क डन? बोलो व्हाट इज वर्क डन? व्हाट इज वर्क डन? F bar dot dr bar. हाँ, इट इज नथिंग बट अ लाइन इंटीग्रल एंड इट इज इक्वल टू, करेक्ट बोला था आपने, एफ बार डॉट डी आर बार. सो इन दिस केस व्हाट इज माई वर्क डन? इट इज एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब डी वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स क्यूब डी जेड. ओके हाँ, एंड ओवर कर्व सी, ओवर कर्व सी, वेर व्हाट इज कर्व सी? सी क्या है? हाँ सी क्या है? Circle. सर्कल. सो नाउ यू टेल मी, यूजिंग अ सर्कल how you convert this integral into a single variable? बोलो. Using a circle, how you convert this integral into single variable? हाँ बोलो. y is equal to under root of सर्कल 1 के केस में x की और y की वैल्यूज क्या रहती है? व्हेन कर्व इज सर्कल, कैन यू टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y? इन केस ऑफ सर्कल व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y? पैरामीट्रिक फॉर्म पता है ना सर्कल का, ये आपने लर्न किया है ऑलरेडी. हाँ बोलो. अरे R cos r theta. cos R cos theta, R R sin. cos theta and R sin theta. अभी ये याद रखो. नाउ दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपने डबल के लिए यूज किया था. तो आप मुझे ये बोलो, जब आप डबल में रहते हो ना, ओके, सो लेट मी गिव यू क्लियरली. मुझे पता है कि आपको 100% नहीं पता इसके आगे का पार्ट. सो लेट मी डिवाइड दिस इन टू पार्ट्स. हाँ, इसमें से हमें फर्स्ट पार्ट ही चाहिए, सेकंड पार्ट नहीं चाहिए, बट लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल. सो अभी आपने क्या बोला था? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. ओके, आप ये याद रखो, ये पैरामेट्रिक फॉर्म कौन से केस में होता है? डबल इंटीग्रल के केस में. क्यों? क्या रीजन होगा? क्या रीजन होगा? डबल मीन्स टू इंटीग्रल. टू इंटीग्रल में कितने वेरिएबल चाहिए? कितने वेरिएबल चाहिए? टू ना. हाँ, देन योर आर वैरी फ्रॉम 0 to 1 स्पेशली फॉर दिस. हाँ, एंड थीटा वैरी फ्रॉम 0 to 2 पाई. डबल इंटीग्रल तो टू वेरिएबल में जाएगा. डबल इंटीग्रल तो टू वेरिएबल में जाएगा. सो कैन यू टेल मी द सेम थिंग, सेम दिस पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर सिंगल इंटीग्रल? अगर यही मुझे सिंगल इंटीग्रल के लिए लिखना है तो क्या चेंज होगा? कैन यू ट्राई? क्या चेंज होगा? x इज इक्वल टू, मैं अभी r की वैल्यू पुट करने वाला हूं. रेडियस क्या है? रेडियस क्या है? 1 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा. ओके, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे r की वैल्यू पुट करके, एंड देन एक ही वेरिएबल होगा विच इज थीटा एंड थीटा वैरी फ्रॉम 0 to 2 पाई. अभी क्लियर हो गया कहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज करना है सर्कल के लिए? इज दिस क्लियर? Yes, sir. सो इट्स बेटर, लेट मी राइट इट, लेट मी गिव यू इन जनरल. हाँ, तो यही पीपीटी आप रेफर करोगे. क्या होगा यहाँ पे फिर? a cos थीटा ना, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. डन.
ठीक है. So now we are in single integral. So for a single integral in this case, what is our substitution? इसको मैं ना ब्रैकेट में डालता हूँ. Okay, done. And now in this case आपके पास कर्व क्या है? हियर C इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. आपके पास सिंगल इंटीग्रल है तो आपको क्या पुट करना होगा? x इज इक्वल टू r इज 1 cos थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा, एंड थीटा वैरी फ्रॉम 0 to 2 pi. कैन यू टेल मी व्हाट इज dx? dx इज माइनस साइन थीटा डी थीटा. व्हाट इज dy? हाँ, cos थीटा डी थीटा. अभी बस एज इट इज वैल्यू पुट करो, डन. सो अभी इसको मैं नीचे कॉपी करके लेता हूँ, नहीं तो मुझे हमेशा ऊपर आना होगा. सो लेट मी कीप इट हियर एंड लेट मी राइट. अभी बस लिखना है, ठीक है. सो therefore the line integral f bar dot dr bar over curve c is equal to, हाँ ये था. तो बोलो x स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर cos स्क्वायर, y क्यूब क्या होगा? y क्यूब sin क्यूब, हाँ. देन dx क्या है? माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है. हाँ, ओवर थीटा विच चेंज 0 to 2 pi प्लस, अब ये लेंदी है, सॉरी, प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर जेड क्यूब, है जेड कांस्टेंट होगा ना इस केस में? यस, हाँ. एज वी हैव ओनली 2 dimensions, so z is constant. z के लिए कुछ दिया नहीं है क्या? हाँ. सो लेट मी, एक्चुअली वो स्टेटमेंट चाहिए था वहाँ पे प्रॉपर, बट ठीक है. सो दिस सर्कल इन अराउंड अ सर्कल ऐसा चाहिए था वहाँ पे, कॉमा z इक्वल टू 0, ठीक है. बट नहीं है. सो इफ इट इज़ नॉट गिवन यू हैव टू कंसिडर दैट वैल्यू टू बी 0. सो हाँ, और इसके साथ एक और मैं ऐड कर लेता हूँ. z क्या गिवन है? 0. ये एक्चुअली यहीं पे चाहिए था सर्कल के साथ. सो इफ z इज 0, dz इज ऑल्सो 0. व्हाट अबाउट सेकंड टर्म देन? इसमें z आ रहा है तो ये 0 ही होगा ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है. लास्ट में भी क्या है? dz है तो वो भी क्या होगा? 0 होगा. इजी हो रहा है. क्लियर? एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? बोलते जाओ जल्दी. नो सर. ओके. हाँ, ये z एक्चुअली क्वेश्चन में मेंशन होगा, डोंट वरी अबाउट दिस. इफ इट इज नॉट मेंशन तो फिर आपको पता है x एंड y का इक्वेशन दिया तो z नहीं है तो मतलब वो 0 ही होगा, क्योंकि आप why? बिकॉज यू आर ऑन xy प्लेन, आप xy प्लेन पे हो. सो जस्ट सॉल्व दिस. सो थीटा वैरी फ्रॉम 0 to 2 pi, द माइनस साइन इज देयर, देन इट इज साइन रेज टू 4 थीटा cos square theta d theta. Again, if you don't know how to solve this, use calculator. So integral sin raised to sin raised to कैसे पुट करना होगा मुझे, मैं दिखाता हूँ. So just put x bracket complete and then let me take its power. So its power is 4. Clear? आप ये देखो मैं पुट कैसे कर रहा हूँ. दिस इज इम्पॉर्टेंट. नहीं पता है तो फिर ये मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट को ही समझ में आएगा. नेक्स्ट cos square theta. So let us take cos, let us take x complete, then take its square. Okay, and your x vary from 0 to 2 pi. So 0. एंड आप ये याद रखो, मोड कंपलसरी रेडियन चाहिए क्योंकि सारे कैलकुलेशन रेडियन में होने चाहिए इंटीग्रेशन के. सो 0 to 2 pi. सो 2 और पाई कहाँ पे? यहाँ पे. वेयर इज द पाई? दिस इज एक्स कैलकुलेटर. हाँ,
0 पे, तो शिफ्ट दिस, डन, तो इज इक्वल, इट टेक सम टाइम। क्या आ रहा है आंसर? -π/8 हो जाएगा ये, yes or no? हो जाएगा ना ये Yes. कैल्सी पे? हाँ, क्योंकि तो ही आप टाइम मैनेज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, ठीक है। और यू कैन चेक दिस रिकॉर्डिंग आल्सो, अगर आपको फिर से देखना है तो। ठीक है, मैंने आपका इतना टाइम सेव किया है, ये पूरा, अगर आप कैल्सी यूज करते हो। So now let me discuss the last case from this फर्स्ट टॉपिक। लाइन इंटीग्रल की एक केस मैंने पेंडिंग में रखी थी, तो जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो ये जो केस होगी जहाँ पे बस आपके पास 2 पॉइंट्स है बट वी डोंट नो नेचर ऑफ दैट कर्व, दिस केस ऑकर ओनली इन वर्क डन, इसलिए मैंने होल्ड पे रखा था। दिस केस occur only in work done। सो यही तीनों केसेस आपको परफेक्टली याद रखने, ठीक है। पहली केस इक्वेशन गिवन है, सेकंड में स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, थर्ड में कुछ भी पता नहीं कि कर्व क्या, बस 2 पॉइंट गिवन है, इन बिटवीन कौन सी कर्व है वी डोंट नो। ये जनरली वर्क डन में होता है। नाउ लेट मी गिव यू रिजल्ट इन दिस केस। तो आप इस केस में क्या करते हो? ओके, सो स्टेप 1, अभी इतना कुछ चेक नहीं करना है, बट इन दिस केस हाँ, अगर ऐसा है कि आपके पास इफ द नेचर ऑफ कर्व इज टोटली अननोन, ओके, इन दैट केस पहले आपको ये चेक करना है कि जो आपका एफ बार है, ओके, वेदर दैट एफ बार इज इरोटेशनल और नॉट। ओके, check whether f bar is irrotational। means what? irrotational का मीनिंग क्या होता है? हाँ, अरे what is the definition of irrotational? डेल क्रॉस एफ बार इक्वल टू 0, ये कंपलसरी आएगा इस केस में। ओके, बट आपको चेक करना है, चेक वेदर दिस एफ बार इज इरोटेशनल और नॉट। ओके, तो बट ये कंपलसरी आएगा। ओके, ये आपको पहले चेक करना है। एंड स्टेप 2, इफ एफ बार इज इरोटेशनल देन फाइंड स्केलार पोटेंशियल फाई। ये आपको मैंने इसके क्वेश्चन लिए थे। देन फाइंड स्केलार पोटेंशियल फाई। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाई? इफ यू रिमेंबर, इंटीग्रल ऑफ f1 dx yz constant, next terms in f2 free from x dy y constant So z constant। अरे सॉरी, z constant। एंड लास्ट में टर्म्स इन f3 फ्री फ्रॉम x एंड y dz। ठीक है, ये आपको इफ एफ आर इज इरोटेशनल देन फाइंड दिस फाई। एंड स्टेप 3 में फिर आपको आंसर आ जाएगा, योर स्केलर पोटेंशियल सॉरी योर वर्क डन इज नथिंग बट फाई एट दैट लास्ट पॉइंट। 2 पॉइंट्स गिवन थे ना आपको क्वेश्चन में, माइनस फाई एट इनिशियल पॉइंट। दिस इज योर आंसर। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल एंड आफ्टर दैट विल मे बी स्टॉप। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन।
तो ये मैंने ऊपर ऑलरेडी ऐड किया है. नाउ लेट मी पुट इट हियर. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस पर बहुत सारे एमसीक्यूज क्रिएट हो सकते हैं. सो इन सोल्यूशन क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड वर्क डन. तो उन्होंने वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बोला है विच मूव्स पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो क्या नेचर है कर्व का, बोलो. गिवन है क्या यहाँ पे, कर्व का नेचर गिवन है. उन दोनों पॉइंट इन बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स कर्व का नेचर क्या है वही हमें पता नहीं है. वो स्ट्रेट लाइन है, कर्व है या एनीथिंग. ओके, सो दैट वी डोंट नो. ओके, सो हियर नेचर ऑफ द कर्व इज अननोन. तो ये केस 3 का प्रॉब्लम है. एंड आप देखो कंपलसरी इस केस में आपको वर्क डन का ही क्वेश्चन होगा. ओके, तो इन दोनों चीज़ों से आपको वेरीफाई करना है. वर्क डन का क्वेश्चन है. ओके, एंड नेचर ऑफ द कर्व इज अननोन. तो आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू चेक वेदर दिस एफ बार इज इरोटेशनल और नॉट. तो उसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, डेल क्रॉस एफ बार. व्हाट इज द फॉर्मूला, टेल मी क्विकली. आई बार, जे बार, के बार. व्हाट इज इन द सेकंड रो, डैबा बाय डैबा एक्स, डैबा बाय डैबा वाई, डैबा बाय डैबा जेड. व्हाट इज इन द थर्ड रो, एफ बार के कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई. ओके, डू इट. सो इट इज इक्वल टू आई बार इन ब्रैकेट, बोलो विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, माइनस एक्स, माइनस विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या आएगा, माइनस एक्स. तो ये जीरो हो जाए, सारे जीरो ही आने वाले कंपल्सरी, मैं आपको बोल रहा हूँ. सो विद रिस्पेक्ट टू जेड, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, माइनस वाई, माइनस विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या आएगा, माइनस वाई, प्लस के बार. विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, माइनस जेड, विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा, माइनस जेड. डन. सो इट इज इक्वल टू 0. हेंस एफ बार इज ई रोटेशनल. तो जिस क्वेश्चन में नेचर ऑफ द कर्व अननोन है उस क्वेश्चन में एफ बार कंपलसरी ई रोटेशनल होगा, बट आपको वो शो करना है. अगर थ्योरी एग्जाम है तो शो करना है प्रॉपर. ऑनलाइन है तो आपको डायरेक्टली एज ई रोटेशनल लेके आगे जाना है. नाउ लेट मी कैलकुलेट फाई. तो फाई का फॉर्मूला आपको पता ही है, आई विल नॉट राइट इट अगेन. ओके, या तो मैं कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से फिर से. Let me copy from here. So phi equal to this. ये आपका फॉर्मूला है. Now let me just put the values here. So it is equal to f1 क्या है, f1 x square minus yz. So x square माइनस वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड वाई एंड जेड आर कॉन्स्टेंट. प्लस नेक्स्ट बोलो जल्दी, नेक्स्ट क्या है बोलो. हाँ, टर्म्स इन F2 फ्री फ्रॉम x क्या लिखना है, टर्म्स इन F2 फ्री फ्रॉम x क्या लिखना है, Y square. y square. Good. So just write here y square z constant. Now terms in F3 free from x and y. बोलो. Z square. Z square. Z square dz done. So complete this integral. ठीक है. इस फॉर्मूले में c था ना, आई थिंक. Yes, sir. c था ना. ओके. Yes. And then let me complete this integral. So it is equal to, with respect to x आप कर रहे हो तो x cube by 3 minus x y z
विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हो, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो, सो प्लस वाई क्यूब बाई 3, ओके, वाई क्यूब बाई 3 एंड लास्ट में प्लस जेड क्यूब बाई 3. दिस इज माई फाई प्लस सी. Okay, and now what is my work done? So work done is nothing but this phi at B point minus this phi at A point. So this phi at B point, तो B point आपको given है. Second point क्या है? 3 phi u minus 7. So 3 phi u minus 7 minus this phi at first point. First point क्या है? 1 1 1. So can anyone tell me this answer? ठीक है, या तो मैं चेक कर लेता हूँ रेडीमेड मेरे पास क्या आ रहा है. ठीक है, या फाई भी चेक हो जाएगा. तो अपना फाई क्या था? करेक्ट है, फाई करेक्ट है एंड सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट. सो आप कैलकुलेशन ये कर लोगे. सो 124/3 दिस इज द आंसर. 124/3 ये आपका फाई है. इसमें ये सी कैंसिल हो जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट दिस सी. आ भी जाता है तो कोई इशू होगा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो इसमें x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, z इक्वल टू -7 पुट करो, एक वैल्यू आ जाएगी. माइनस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करो, सेकंड वैल्यू आ जाएगी. डन. दिस इज योर वर्क डन. सो व्हेन द इक्वेशन ऑफ कर्व इज अननोन, उसमें वो वेक्टर फील्ड कंपलसरी इरोटेशनल चाहिए, क्योंकि जैसे वो इरोटेशनल आता है उसके बाद आप क्या कर सकते हो? फाई कैलकुलेट कर सकते हो एंड देन वर्क डन बिकम दिस फाई एट लास्ट पॉइंट माइनस फाई एट इनिशियल पॉइंट. क्लियर? दिस इज योर लाइन इंटीग्रल. तो इस पे क्वेश्चन किस किस टाइप में आने वाले हैं आज के सेशन में जितना भी देखा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. फर्स्ट, कर्व गिवन होगा, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. सेकंड, स्ट्रेट लाइन है ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. थर्ड, पाथ गिवन है A to B, B to C, C to D, हर एक पाथ पे इंडिविजुअली कैलकुलेट करके ऐड करो. थर्ड एग्जाम्पल. फोर्थ एग्जाम्पल, सर्कल के ऊपर कैलकुलेट करना है. तो यही आएगा, सर्कल ही रहेगा एग्जाम में, डोंट वरी अबाउट दैट. तो सर्कल के ऊपर कैलकुलेट करना है तो सिंगल इंटीग्रल है तो ये पुट करना पड़ता है. नेक्स्ट टॉपिक में हमें ये भी यूज करना है डबल इंटीग्रल का पार्ट. ठीक है, तो ये इस लॉजिक से फिर आपने इस इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट किया, देन यू विल गेट दैट आंसर. फिफ्थ एग्जाम्पल में नेचर ऑफ द कर्व अननोन है, तो फिर आपने उसको इरोटेशनल शो किया है और फिर फाई कैलकुलेट करके फाई एट लास्ट पॉइंट माइनस फाई एट फर्स्ट पॉइंट बिकम द आंसर. क्लियर? एनी डाउट इन लाइन इंटीग्रल नाउ? बोलो. No, sir. हाँ, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट लाइन इंटीग्रल. इस पर मतलब इजी